تو آج بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ اولاد کے بارے میں کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور نیا عہد نامہ بھی کس بات سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو آپ سب نے دعاؤں میں کہا بھئی اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، یہ حقیقت ہے۔ اولاد پیٹ کا پھل ہے، یہ حقیقت ہے۔ سن 2001 میں یہ بات میں سوچتا تھا، اولاد خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے پادریوں سے سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، تو میں یہ سوچتا تھا جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، خدا ان کو بھی اولاد دیتا ہے۔ سوچتا تھا، بڑا سوچتا رہا۔ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ بات خیال میں آئی ہو بھئی جو خدا کو نہیں مانتے بڑے لوگ ہیں جی، جو کہتے ہیں خود سے ہے کائنات، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں آگ سے ہے خدا، کچھ لوگ کہتے ہیں مادہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جوہر سے ہے، خدا نہیں۔ اولاد ان کی بھی ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ جتنے آپ سائنسدان دیکھیں گے کثرت کے ساتھ وہ خدا کو نہیں مانتے، اولاد ان کی بھی ہے۔ چیزیں بھی تخلیق کرتے ہیں، چیزیں بھی بناتے ہیں، چیزیں نئی نئی آپ کو تعارف بھی کرواتے ہیں، اولاد ان کی بھی ہوتی ہے۔ یہ سوال ضرور سوچئے، خدا میرے جیسا نہیں، مجھے اس کا جواب مل گیا، خدا میرے جیسا نہیں، خدا ایوب بھائی جیسا نہیں، خدا پادری صاحب جیسا نہیں۔ خدا کا اصول ہے، خدا جس کو چیز دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، کیونکہ انسانیت کے اندر اور اس کی نیچر میں جب اسے بنانے کے بعد خدا نے کہا تو اولاد کو کیا کر جی، پیدا کر۔ خدا کا ارادہ تھا اولاد پیدا ہو، خدا چاہتا تھا بڑھوتی ہو۔ اب کس وقت؟ جب پاکیزگی کی حالت میں، کس کی حالت میں جی؟ پاکیزگی کی حالت۔ اب گناہ نہیں کیا تو اولاد کا ارادہ پروگرام خدا نے کس کو دے دیا جی؟ آدم کو۔ اب پھر یہاں بھی ایک سوال بنتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے اولاد نہیں ہوئی، خدا تو چاہتا تھا اولاد ہو، تو کچھ لوگوں نے سمجھا گناہ کے سبب سے اولاد ہوئی، پھر حوالہ جات بھی دیتے، جمعیاں وچ گناہ دے میری مائی۔ اولاد گناہ کا پروگرام نہیں تھا، پاکیزگی کی حالت میں پروگرام تھا خدا کا۔ خدا چاہتا تھا آدم کی بڑھوتی ہو، تو خدا نے آدم کو یہ برکت پہلے سے ہی دے رکھی تھی، انسانیت کے اندر یہ برکت آ گئی تھی۔ اب وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اولاد تو ہوگی، اولاد تو ہوگی، کیونکہ خدا نے انسانیت کے اندر رکھ دی، اور وہ کہاں ہے جی؟ انسانیت کی نیچر میں۔ اب شادی کرو تو پھر بھی اولاد ہوگی، شادی کے بغیر بھی اولاد ہو جاتی ہے جی۔ آپ کے بہت سارے ملک ہیں جی جو بغیر شادی سے اولاد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اولاد کون دے رہا ہے جو شادی کے بغیر بھی ہے؟ اولاد تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں خدا نے برکت رکھ دی گئی ہے، تو وہ خدا کو مانے یا نہ مانے۔ پھر خرابی کہاں آ گئی؟ کسی کے لڑکیاں ہی ہوتی جاتی ہیں جی،
कुछ लोगों के लड़के ही होते रहते हैं जी। बाजी जे ते लड़कियां जिन्हां दियां बोदियां वेख्या ना खुदा तेरे को बदले लैन दिया। ये तो सेल की प्रॉब्लम है जी। अगर सेल को समझने वाला है वो लड़के पैदा कर लेगा, और जिसको समझ नहीं है वो लड़कियां पैदा करता रहेगा जी। मेडिसिन खाते हैं फिर लड़के पैदा हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने मेडिसिन खाया, लड़के पैदा होना शुरू हो गए। ये तो मेडिकल प्रॉब्लम है। जब उसने गुनाह किया और उसकी नेचर बिगड़ गई, फिर लड़के नहीं हो रहे, लड़कियां भी नहीं हो रही, कोई औलाद नहीं हो रही, क्योंकि रहम के अंदर गुनाह के सबब से रुकावट आ गई। कुछ लोगों के होते हैं, फिर वो दुआ कराते हैं, मौजे की सूरत में भी हो जाते हैं, मेडिसिन के साथ भी हो जाते हैं, अपने माइंड को ठीक कर लेते हैं, फिर भी हो जाते हैं। खुदा ऐसा है, खुदा कादर है, उसकी शफकत अबदी है, और वो जिसको चीज़ देता है वापस नहीं लेता। उसने अपना बेटा आपको दिया, आप उसे माने या ना माने, वो आपसे बेटा वापस ले लेगा? देखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना अकलौता बेटा बख्शा। उसने बेटा बख्शिश में दिया तो बरकत आपको पकीज़गी की हालत में दी। खुदा जानता था, खुदा बेइल्म नहीं, खुदा जानता था आदम गुनाह करेगा। अगर हम कहें खुदा को नहीं पता था भाई आदम गुनाह करेगा, खुदा बेइल्म था। खुदा के इल्म साबका के बात अंदर मौजूद थी, आदम गुनाह करेगा, इसीलिए उसने अपने बेटे का इंतज़ाम किया, कफ़ारे का इंतज़ाम किया। आज जब हम कलाम को कबूल नहीं करते, लोग कलाम को सच्चा जानते हैं। मुझे आपका नहीं पता आप कबूल करने वाले हैं या सच्चा जानने वाले हैं। कलाम को कुछ लोग सच्चा जानते हैं, ठीक है जी, ये बात सच है, उन्होंने सच्चा जाना। सच्चा जानना और बात है, उसे कबूल करना और बात है। आज मैं बताऊंगा जी कलाम को कैसे कबूल किया जाता है जी। पहले मैं चाहूँगा भाई एक हवाला पढ़े भाई जी, है आपके पास जी? ऐसा बोलिए। कलाम पाक में से हम तिलावत करेंगे तीसरी ज़बूर की किताब बाब नंबर 128 और आयत नंबर पहली से लेकर तीसरी आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। पहली बात, तेरी बीवी कैसी होगी जी? मेवादार ताक की मानत, और तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानत। ये यहूदी अंगूर के साथ तशबीह देता है या जैतून के साथ और खजूर के साथ। ये बाइबल मुकद्दस में 3 फलों का कसरत के साथ जिक्र है। आप पंजाब वालों को, जो एशिया के लोग हैं पंजाब वाले, आपको पता है आपको कौन सा फ्रूट दिया गया है? आपको गन्ना दिया गया है। पंजाब में कसरत के साथ गन्ना। यहूदियों के पास कसरत के साथ क्या थी जी? जैतून और अंगूर। तो अरब के पास कसरत के साथ खजूर। तो जैतून की तल्लक औलाद के साथ है। अब जैतून है क्या चीज?
हमारे मुल्क में सिर्फ सूजाबाद में चंद बाग है, पूरे पाकिस्तान में आपको जैतून नहीं मिलेगा, आपकी फसल ही नहीं, क्योंकि ये पौधे जो हैं ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं जी, और गर्म इलाकों में होते हैं जी। और इसकी खूबी, पहले तो इसकी जिस्मानी चीज़ को देखते हैं जी। जैतून पहला काम क्या करता है जी? घुटनों की दर्द को ठीक करता है जी। जैतून दिल के वाल बंद नहीं होने देता। जैतून सबसे कीमती चार जैतून का है। फिर उसके आयल की तरफ आ जाए तो उसका आयल भी सब आयलों से ज़्यादा कीमती है। किसका जी? जैतून का। अब जैतून का तेल जो खाते हैं वो बूढ़े कम होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है। एशिया में कम मरने वालों की वजह क्या है? इनकी खुराक ठीक नहीं, क्योंकि बाइबल ने कहा कुव्वत हो 80 बरस, कुव्वत हो तो 60 साल, कुव्वत हो तो 120 साल। कुव्वत। अब कुव्वत किससे कायम करनी है जी? क्योंकि यहूदी लंबी उम्र क्यों पाते थे? क्योंकि उनके टेबल पर जैतून मौजूद होता है और साथ अंगूर। अंगूर में कसरत के साथ तवानाई है और जैतून के अंदर भी कसरत के साथ तवानाई है। इसलिए लिखा तेरी जवानी की औलाद जैतून के पौधों की मानद है, ताकि उसमें जोर होता है, ताकत होती है। जैतून में कसरत के साथ ताकत पाई जाती है। इसलिए वो जैतून खाते थे और जैतून पीते थे। जैतून खाने वाले के चेहरे पे कभी दाग नहीं होगा। जिन औरतों के चेहरे से दाग ख़त्म नहीं होता वो जैतून इस्तेमाल करे, कभी दाग चेहरे पर नहीं होगा। इसलिए यहूदियों के चेहरे चमकते हैं और उनकी हड्डियां बढ़ती हैं, क्योंकि जैतून हड्डियों को बढ़ाता है, जिस्म की बढ़ोतरी करता है। तो खुदा ने कहा तेरी औलाद किसकी होगी जी? जैतून के पौधों की मानत। कामयाब टिड्डे टिड्डे ही पैदा होई जान डे। 4 फुट तो कद ही नहीं जान डे। मां ने ना दुध पीना है ते ना देसी खाने ते ना भांडा खाना है। कहना है पता नहीं किस ते चला गया। कैल्शियम की कमी, हड्डियां बड़ी नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई। जैतून खाने वालों के बढ़ोतरी होती है। ये किनके साथ वादा है? यहूदियों के साथ। किसको कहा जा रहा है? यहूदियों को। भाई तेरी औलाद कैसी होगी? जैतून के पौधों की मानत, क्योंकि इनको तशबीह ही जैतून के साथ दी गई है। लिखा वो जैतून की डालियां काट दी गई जो फल नहीं लाती थी, इसलिए काटी क्योंकि उनकी औलाद ने तेरा हुक्म नहीं माना। जब उसने हुक्म नहीं माना तो उसने खुदा ने यहूदियों की औलाद को तितर बितर किया। तो नए अहदनामा में भी जैतून का जिक्र है आपके साथ। ये तो यहूदियों के साथ हो गया। पौलुस रसूल ने, क्योंकि वो यहूदियत को अच्छे तरीके से समझता था, मूसवी शरीयत को समझता था, जैतून के रूहानी मायने भी जानता था, तो इसलिए उसने रोमियों की कलीसिया को, जो ज़बरदस्त कलीसिया थी, जो मसलूबियत को जानने वाली कलीसिया थी, तो उसने तशब्बीहन कलाम किया। किसके साथ? जैतून के साथ। मैं चाहता हूँ रोमियो का ख़त निकालिए। एक बंदा खड़ा हो जाए जी जो तलावत करना चाहता है। भाई आप ही खड़े हो जाए। रोमियो बाप नंबर 11 और आयत नंबर 16 से। ये बड़ी काबिल गौर बातें सुनने वाले हैं। 16वीं आयत से जी। जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है।
और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आगे। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। आमीन। आमीन। तुम क्या थे जी? जंगली जैतून। अब जंगली जैतून जो है वो फर्क है, हकीकी जैतून फर्क है। हकीकी जैतून यहूदी थे जिनको काट डाला। क्या किया जी? तो फिर लगाए कैसे? जंगली को कैसे लगाया जाता है जी? आप में से किसी ने कलमकारी कभी की जी? कलमकारी तो सुनी होगी जी। कलमकारी करने का असूल ये है, पहले दरख्त को छेदा जाता है जिसकी नीचे जड़ें मजबूत हो। अगर वो दरख्त ना छेदा जाए तो पवंतकारी नहीं हो सकती, कलमकारी नहीं हो सकती। तो कलम भी छेदे हुए दरख्त को कबूल करती है और दरख्त भी उस कलम को क्या करता है जी? कबूल करता। तो आपके और मेरे यस्सु को छेदा गया। तो यसाया की किताब में लिखा है, खुदा को पसंद आया उसे वो छेदे। क्यों छेदा? हमने तो गा भी दिया ना, रोमियों के खिलाफ जालम कोड़े मार देने। ये तो खुदा को पसंद था, बादशाह को पसंद नहीं था यस्सु को सलीब दी जाए। खुदा नहीं चाहता था और ना शैतान चाहता था यस्सु को सलीब दी जाए। खुदा चाहता था क्योंकि जंगलियों को उस जड़ में लगाना था जी। पहले उसने उसे छेदा। 117 लोथड़े उस दरख्त से निकाले गए। जब आप 40 को ज़रब देंगे 3 के साथ तो 1 कम 17 कोड़े बनते हैं, क्योंकि रोमी कोड़ा जो था वो 3 लड़ियों का था। जब पहला कोड़ा मारते तो 3 लोथड़े निकलते थे। ऐसे 1 कम 40 मारे गए, इसलिए क्योंकि यहूदी रवायत थी 40 कोड़े मारने हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो मारने वाले को सज़ा दी जाती थी, इसलिए उन्होंने 1 कम मारा। गिनती में गलती ना हो, गिनती में गलती। यहूदियत मूसवी शरीयत जो है वो गिनती है, दिनों को मनाती है, और दूसरा वो गिनती है, और तीसरी वो ईदें भी गिन कर मनाते हैं जी। तो हमने इसकी सालगिरह दिन की नहीं मनानी, तारीख की नहीं मनानी, हमने दिन मनाना है। लोगों की समझ में ये बात शायद ना आए, लोग तारीख मनाते हैं जी। इसकी तारीख क्या बनती है जी? 5। आप 5 पर ही केक काटेंगे क्योंकि आप तो यहूदी हैं। यहूदी तारीख मनाता है, इसलिए टीवी पर रोला बना जी, यस्सु मसीह की तारीख 25 ठीक नहीं, 25 तारीख ठीक नहीं। झूठ बोलते हैं, हम तो डेट मनाते ही नहीं, हम तो मुजस्सम होना मनाते हैं, उसका पैदा होना मनाते हैं। ऐसे ही इसका पैदा होना मनाया जाए, डेट नहीं। आपको नए अहदनामा में कहीं डेट नहीं मिलेगी। लिखा है आओ मिलकर ईद करें, आओ मिलकर खुशी करें। लिखा है हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। अब हम तो ज़रा अपनी हालत देखें, क्या हम हकीकी ज़ैतून थे? नहीं। क्या कहता है रसूल? हम जंगली थे। क्या थे जी? अब जंगली की नेचर आप जानते हैं, जंगली की नेचर क्या होती है। अगर बाद में क्या किया गया, उस कलम को काटा, यस्सु को छेदा। अब कबूल कैसे किया जाता है? उसे भी कट लगाया जाता है और कलम को भी कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद उसे जहाँ छेदा गया था वहाँ लगा दिया जाता है, फिर ऊपर टेप कर दी गई जाती है जी।
40 दिन, 40 का मतलब होता है वक्त का पूरा होना। 40 दिन जो माली होता है वो उसे देखता है, फिर उसमें से एक रूट निकलता है। अगर रूट ना निकले तो वो कलम को निकालता है, कलम को निकालने के बाद वो गोबर में दबा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर नहीं मरी। जब तक कलम की नेचर ना मरे तो वो क्या जिसमें लगाना है वो उसे कबूल ना करे। कबूल करने का मतलब है एक हो जाना, रूट निकले, शूट निकले। जब रूट निकलता है तो डानियां बनती हैं, जब डानियां बनती हैं तो फल लगता है, जब फल लगता है तो हरा भरा जैतून रहता है। जैतून कभी नहीं सूखता, हरा रहता है, क्योंकि उसमें से रूट निकलता है। तो हम जंगली थे, हमारा कोई मजहब नहीं था, हमारा कोई कबीला नहीं था। अगर हम अपना निस्बनामा उठाएं तो कोई वाल्मीकियों से निकलेगा, कोई सिख से निकलेगा, कोई हिंदुओं से निकलेगा, कोई कहाँ से होगा। इसीलिए ही हमारी रवायतें शादियों में से मालूम हो जाता है, हिंदुओं के साथ मिलती हैं, वाल्मीकियों के साथ मिलते हैं। हम तो जंगलियों में आए थे, हम तो वाल्मीकियों में। इसलिए पतरस ने कहा पहले हम कोई कौम, कोई कबीला ना थे, कोई उम्मत ना थे, बल्कि उसके बेटे को कबूल करने से, उसमें लग जाने से हम शाही खानदान बने, हकीकी जैतून में लग गए। यीशु मसीह बाप में से निकला। यीशु मसीह जैसी डाली होती है, जैसी जड़ होती है वैसी डाली होती है। आप जैतून में थे, कौन थे? जंगली। यीशु मसीह क्या था जी? हकीकी जैतून। अब क्या किया? जंगल से काटा। इसलिए लफ्ज़ कलीसा, हम कलीसिया बोलते हैं, कलीसा। कलीसा जो लफ्ज़ है ना जी, इसका मतलब ही ये है अलग करना, काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। किससे? बदी से कह दो ठीक है, गुनाह से कह दो ठीक है, मुखालफत से कह दो ठीक है, नफरत से कह दो ठीक है, बदी से कह दो ठीक है। क्योंकि कलीसिया जो है वो अलग की है काट कर। तो कहाँ लगा दी गई? हकीकी जड़ में, हकीकी जड़ में। तो उस हकीकी जड़ ने क्या किया? उस जंगली को कबूल कर लिया। तो कबूल कर कर उसमें से रूट निकाला। और पौधों का जो इल्म रखते हैं, जड़ से लेकर उपली चोटी तक वो हवा लेता है, सांस लेता है, पैगाम देता है। इसलिए उसे कहते हैं जीती जान। पौधों में जान होती है, वो सांस लेता है। अब आप हैं इसके रूहानी में नहीं निकाले, आप तो इज्जत किस में लगा दिए गए? हकीकी। तो आप में सांस किसकी है? क्योंकि आपको तो जड़ ने संभाला हुआ है। आपकी जड़ कैसी है? लिखा है अगर जड़ पाक है तो डालियां नापाक। ये लिखा, अगर जड़ पाक है तो डालियां ऐसी ही पाक। अगर पहला गूंदा हुआ आटा, पेड़ा पाक है तो गूंदा हुआ आटा भी। ये गूंदा हुआ आटा क्या है? आपने देखा होगा शाम के वक्त एक बच्चा एक कटोरी में सालन, एक गिलास का दूध, एक रोटी मस्जिद में लेकर जा रहा है। ये क्या है? आपको पता है? नहीं, यहूदी ऐसे करते थे। पहला जो आटा एक पेड़ा निकालते थे वो सरदार काहिन के लिए होता था। तो कहता उस पेड़े के सवाब से नहीं बल्कि आटे के सवाब से वो पूरे का पूरा पेड़ा पाक है। ऐसे ही जड़ के सवाब से आप पाक हैं अगर यीशु को कबूल किया। फिर भी हमने गाना शुरू कर दिया, दिल है काला काला ते पापा दे नाल भरिया, मैं गुनाहगार। भाई आप जड़ में लगे हुए हैं। मैं आपको मुकाशफा देना चाह रहा हूँ, आप जड़ में लगे हैं। अगर यीशु को कबूल किया है, अगर आपने कलाम को कबूल किया है, NRK हो लगास को कबूल किया है, कलमे को कबूल किया है, आप कलमे में लगा दिए गए तो उसने आपको संभाल लिया।
उसमें से जो रूट निकला वो पाक है, उसमें सांस निकली पाक है, उसमें पैगाम निकला पाक है, उसमें ज़िंदगी निकली वो पाक है, क्योंकि उसमें से निकली है, क्योंकि उसकी ज़ात जंगली ना रही। अब सोतरा ना रहा, अब बट्टी ना रहा, अब गिल ना रहा, पहले कुछ नहीं थे, अब ज़ात बदली है, क्योंकि लिखा बड़ी खराबी से छूटकर ज़ाते लाही में शरीक हो गए। अब आपकी ज़ात बदली है, क्योंकि हम तो जंगली थे, हमारी नेचर नुकसान करने वाली थी। अगर हम कहते हैं हम मसीह में हैं तो नेचर नहीं बदली, तो हम जंगली हैं। अगर हम कहते मसीह में हैं तो उसमें लगाए गए हैं, उसको कबूल किया है। कबूल करना है थाम लेना, कबूल करना है रख लेना। भाई एक मिनट खड़े होना, मैंने इसका इनकार भी किया है जी, मुझे याद है। आपने कबूल किया था जी। इसने कहा हन्ना मुझे कबूल है। मैंने हन्ना से पूछा ये तुझे कबूल है? इसने क्या कबूल है। आपने कहा क्या था जी? कबूल है। कबूल आप उधर छोड़ आए, कहाँ? साथ। कबूल का मतलब साथ रख लेना। जब इसने कबूल किया, इसकी कमियों को कबूल किया था? जी जी नहीं। नहीं। और भाई आपको जब उसने कबूल किया, कलमकारी की, आपकी जितनी भी कमियां थी, आपकी जितनी भी कमजोरियां थी, सारे की सारी साथ कबूल कर कर रूट निकाल डाला। आपकी खूबियों से नहीं आपको कबूल किया, आपकी अच्छाई से कबूल नहीं किया, अपने फजल से कबूल किया है, अपनी शफकत से कबूल किया है, आपको अपने अंदर लगाकर अपनी ज़ात दे दी। अब क्या मांगे लोग? मांगते मांगते मंग 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 के मंगते हो गए। ज़ात दे छड़ी, जो ज़ात दे जाती है तो फिर पीछे कोई चीज़ रह जाती। अब आप में से ये बेटी निकली है, यीशु मसीह में से, यीशु मसीह बाप में से निकला, खुदा से निकला। हम बाप में से निकले नहीं, हम उसमें लगा दिए गए, हम उसमें लगा दिए गए ताकि कौन नजर आए। अब आपकी ज़ात क्या है? खान। खान। तो ये बेटी की ज़ात क्या है? खान। आप किस में लगाए गए? यीशु में। यीशु की ज़ात क्या है? शाही। यीशु की ज़ात क्या कहेंगे? यहूदा। यीशु की ज़ात क्या कहेंगे? खुदा वाली। तो वो ज़ात आपकी है, क्योंकि आप उसमें लगा दिए गए। आपने एक बकरी पाली, आप उसे पानी दे रहे हैं, आप उसे चारा खिला रहे हैं, आप उसे चनाबे वाला मेडिसिन लेकर दे रहे हैं, बड़ी केयर कर रहे हैं, आप बड़ी उसकी खिदमत कर रहे हैं। मरास किसको दोगे? अपनी लात को। मरास ज़ात वाले को, जिसके साथ ज़ात मिलती हो। जिसके साथ ज़ात ना मिले उसे मरास नहीं दी जाए, उससे प्यार किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसकी फिक्र की जाती है। मरास औलाद को दी जाती है, मरास ज़ात को दी जाती है। आपकी और खुदा की ज़ात एक है, इसलिए आपको मरास दी गई। अपने आप को रहे हुए ना जानो, आपको कलियत ना जाने। बादशाहों की कलियत ही होती है, रियाया और होते हैं, बादशाह कलियत होती है। आप बादशाह हैं, आप शाही ख़ानदान हैं, आप खुदा की ज़ात हैं, आपकी मरास है। यहाँ से सोचना शुरू करें। कायनात में अगर हुस्न है तो आपकी वजह से, कायनात में अगर चीज़ें हैं तो आपके लिए, कायनात में फ्रूट है तो आपके लिए, कायनात में परिंदे हैं तो आपके लिए, कायनात में जानवर है तो आपके लिए, कायनात की हर चीज़ आपके लिए है, क्योंकि आप बेटे हैं। इसलिए आप कहते हैं ऐ अब्बा तेरा शुक्र हो। अब्बा कहते हो? जा कितने लोग अब्बा कहते? ऐ सारे अब्बे वाले ही है ना जी। हाय क्या बात है जी। अब्बा, अब्बा तो फिर क्या बात है जी। और कोई नहीं कहता। कौन कहता है? जिसको हक मिलता है। हम ले पालक बेटे हैं। ले पालक किसको कहते हैं? जो गोद लिया जाए। किसी ने तो जो कि गोद लिया है, जिन्हें गोद नहीं लिया उन्होंने की तजर्बा। वो भी ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਖਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ले पालक कर लिया जाता है। तो शर्त ले पालक दी, उसे अपनी ज़ात दी जाती है, उसे अपनी मरास दी जाती है और उसे अपना नाम दिया जाता है।
تو ہم خون سے لے پالک ہیں، تو ہم اس میں لگا دیے گئے ہیں قلم کاری کر کر۔ اگر نیچر جنگلی ہے تو کس میں لگاؤ؟ روح القدس میں، وہ آپ کی نیچر کو جلا کر رکھ دے گا تو آپ روٹ نکالیں گے، کیونکہ وہ درخت کی خوبی ہے، وہ تو اپنے ہاتھ کہتا ہے آجا بیٹی، آجا بیٹا۔ آپ نے گایا بھی تیار کھڑی ہے دلہن تیری، تیار ہی کھڑی ہے جی، تیار ہے دلہن۔ تیاری کیا ہے دلہن کی؟ کیا ہے تیاری؟ لکھا جب ابن آدم آئے گا، لوکا کی انجیل، جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم مسیح میں ہیں، جیسا محبوب ویسی محبوبہ، جیسا محبوب ویسی محبوبہ۔ مجھے آپ سارے گورے لگ رہے ہیں جی، کیسے؟ لکھا ہے میرا محبوب سرخ اور سفید۔ یہ میں نے اس لیے سرخ اور سفید پہنا ہوا ہے، یہ میں نے برے کو پہنا ہوا ہے۔ برا کھایا بھی جاتا ہے اور پہنا بھی جاتا ہے، یسوع مسیح کھایا بھی جاتا ہے اور اسے پہنا بھی جاتا ہے۔ جنہوں نے مسیح کو پہنا ہوا ہے وہ جائیں گے، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، آج کے کلام کو قبول کرے، اس بات کو قبول کرے، ہم مسیح میں لگا دیے گئے۔ کبھی دیکھنا ایک روڈ پر درخت نیچے اور ہوتا ہے، اس کے بھی اندر ایک درخت ہوتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا؟ وہ کیسے؟ وہ کٹ لگا، وہاں کوئی پرندہ گزرا تو وہاں اس نے اپنا بسلا چھوڑا تو کیا ہوا؟ اوپر گرد آئی، بارش آئی تو وہاں روٹ نکل آیا، کیونکہ نیچے بیج ہے۔ تو میں نے آپ کے اندر بیج بویا ہے۔ کیا بیج بویا ہے؟ یہ بیج ہے جی بھئی آپ مسیح میں لگائے گئے ہیں، مسیح میں روٹ نکال رہے ہیں، آپ کی میراث خدا والی ہے۔ اگر تو بیٹا ہے تو وارث بھی ہے۔ شاگردوں نے کہا اے استاد ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہنا اے ہمارے باپ۔ تو ہم باپ کہہ کر پکارتے، اور کوئی نہیں کہتا باپ، باپ وہ کہتا ہے جس نے یسوع کو قبول کیا۔ آمین۔ تو ہم مسیح میں لگائے گئے۔ میں چاہوں گا بیٹی بھائی صاحب تسی بھی کھڑے ہو، انہوں نے برکت دئیے۔ میں ایک گل بھول ہی گیا جی، یہ بیٹی نو بناونا کی ہے؟ زیتون یا نیم؟ نیم دی تاثیر کو چھوڑ، پھنسیاں پھوڑے بھی نہیں نکلتے، پت بھی ٹھیک ہوں۔ میں نما دے بارے بھی بڑا جاننا ہے، ہر پھل دے بارے جاننا ہے۔ یہ بناونا کی ہے جی؟ خدا دی مرضی؟ ہاں خادمہ، ویری گڈ۔ کیڑے والی؟ ایک گل سن لو، خدا دے حضور چپاتی صاحب کہہ رہا ہے اے جدوں نے 10 سال دی ہونی انہوں نے باہر نہیں جان دینی۔ ویکھن تینوں جھٹکا لگا ہے نا؟ کہنا اور بات ہے، قبول کرنا اور بات۔ سچائی ہے یہ، مجھے یہ ڈر نہیں بعد میں نہ بلانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 10 سال دی ان کی جان دین گے؟ یہ مامے کا چل، میں مامے بھی جاننا، چاچے بھی جاننا، چل چل وڈی خادمہ چل۔ تینوں پتا باہر دے حالات کے جدے بھائی کچھ اور سوچ۔ بھائی صاحب میں غلط کیا؟ کویر چ نہیں جا سکے گی، کوئی چھوڑ کے آئے گا تو پھر، کیونکہ اسی تو سٹارٹ ہی بیٹی نو کہنے اوے نانا کڑی، اسی تو محاورے اتوں شروع کرتے کڑی ہو گئے، یہ جوائی والا ہو گیا ہے، یہ دھی والا ہو گیا جی، یہ فلانا ہو گیا، ہویا تو ہے جوائی والا بھی ہو گیا، سارا ہو گیا، خادمہ نہیں۔ میں نہیں جی چھیتی خادم، بچے تو بھی نہیں دعا کرتا خادم ہماری۔ پہلے پروگرام نہیں، اگر یہ خادمہ بھی بنانے تو اوکے، تسی کی کرنا بیٹا؟ کتاباں پڑھنی کرنی، عبرانی یونانی پڑھنی ہے۔ نکمی بنانا ہے جنوں عبرانی یونانی نہ آوے؟ عبرانی یونانی تو پڑھیں گے، چنیاں دی دال تو کھاویں پیٹ ਇਹਦਾ خراب ہوئے۔ عبرانی یونانی تو پڑھے گی فائدہ انہوں ہوئے گا، کیونکہ فیڈ تو کرواتی ہے۔ موسیٰ نو فیڈ کرایا گیا سی، تو نے نجات دلانی ہے، تو نے نجات دلانی ہے، تو نے نجات۔ اسی کہنے الڑ بلڑ الڑ بلڑ، پوچھے الڑ بلڑ کی ہے؟ پتہ نہیں، مینوں اج تک نہیں پتا چلے الڑ بلڑ کی ہے، کی بھر چھڑیا دے وچ الڑ بلڑ الڑ بلڑ۔
भाई कुछ करना पड़ेगा। अब मैं वो बरकत चाहूँगा, फिर असर होगा। यसू का प्रोग्राम सी ते शमा ने बरकत चाहिए, तो फिर 12 सालों की बरकत नज़र आई है या नहीं? माँ कहन डई उस बेस ते मैं कहन दिया तू इत्थे की करन दिया? उन्हें कहा मुझे बाप के यहाँ होना, फिर बरकत असर करेगी, वरना नहीं असर करेगी। खादमा ही लौज प्रस्तार ते नहीं। दो चीज़ां हैं क्लीयर करके अज खुदा दी हजूरी च गल होएगी। मैं बच्चा महसूस करता बरकत का असर हुंदा है। असीं इन्ने खादम हाँ, खुदा दी नुमाइंदगी करने हाथ रखांगे तो लिखा रसूलों के हाथ रखने से, उस्तादों के हाथ रखने से, रहनुमाओं के हाथ रखने से जो बरकत मिली है उसे चमका दे। ये मजाक है जी हाथ रखना? प्यो पुत्र को बरकत लैन दिया तो कहदा गोश्त खवाउण दिया है? दसो जरा। हरनी दा लैन गया शिकार करके, है बड़ा शकीन से खिच के बोटी, ते भरा दूजा भी सियाना ही, माँ भी सियानी सी, कहंदा किते वो ही ना लै जाए। माँ ने हिकमत यूज़ की, उन्हें कहा जिहड़ा घर बछड़ा है ना इनू ज़बा कर ते लै जा प्यो दे कोल। इंज लगदा जिदा पादरी गोश्त का भी शकीन सी। वो बरकत देन दिया। यकूब की बात कर रहा हूँ। खादा है, खा के चस आ गई है, फिर उन्हें बरकत दी। मैं इंज ही दांगा, घबराओ ना, ठीक है? कहने का मकसद है जो बनाना है वो प्रोग्राम करना पड़ेगा जी, ठीक है बेटा? तो कुछ टाइम फिल्मां नहीं देखेंगी, कुछ टाइम ड्रामे नहीं देखेंगी। जिन्हों टॉप का बनाना है, इनू खिलाउना है केड़ा? पादरी। इहदियां सहेलियां तू बनाउणियां जिहड़ियां पादरी खेडण। फिर वो जिहड़ी तालीम है संडे स्कूल भेजना तुहाडी जिम्मेदारी है। जे ज़बरदस्त खादमा बनाउणी है, ठीक है? इन्ना डिस्कस करनी है भाई तू अबरानी यूनानी दी टीचर बनना है, तू यूनानी सिखानी है, तू दुरुस्त तालीम देनी है, गलत तालीम नू तू रोकना है, तो फिर वो ज़बरदस्त बनेगी। इन्ना डिस्कस करनी है। जो तेरे वाल झड़दा है कि तेनों तड़ियाँ वड्डियां दस देणगे तेरे वाल भी झड़ने हैं। जो तू इन्ना गल्लां करनियां ते इन्ना अल्लड़ बल्लड़ वालियां गल्लां नहीं करनियां, इन्ना गल्लां करनियां तू खादमा है, तू बहुत अच्छा है। सुन रही है वेखो बड़े गौर ना सुन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कलाम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਜ ਆਵੇ तू जतून है, तू ज़बरदस्त हिरनी है, तू ज़बरदस्त मारथा है, तू गवाही देने वाली है। सुनन डई है, लफ्ज़ बयान नहीं है, अंदर नेचर च है। फिर इत्ते खत एक कोरा कागज़ है, इनू भावें पंजाबी सिखा ला ते भावें नफरत सिखा ला, जिहड़ा रिएक्शन तू इहदे नाल करना है ना वो इन्हें बनना है। जिंज दी मर्जी पर्सनैलिटी बना ला। ईमानदार, खुदा की बंदी, खादमा। आमीन। मैं माजरत भाजी तुहाडे को भी कर रहा, चाचू है तुसीं, तुहाडे कोल भी यह नसीहत करना मेरा ज़रूरी सी जी। अगर बुरा लग्या तो माजरत हाथ जोड़ के, ठीक है जी? तो आइए सारे हाथ वधाओ, ज़बरदस्त खादमा बने। ये कन्ना च फजूल गुफ्तगू ना डिस्कस ना जाए, ठीक है जी? तो दोनों ने लड़ना भी नहीं। पहले इन्हां वास्ते बरकत चाहिए ताकि कलाम के मुताबिक इन्हां दी नसीहत और तरबियत कर सकन। भाई साहब हाथ वधाओ, आ जाओ। हालेलुया। भाई सलीम तुसी भी आ जाओ। खुदा जेड़े खिदमत गुजार हो भी हाथ वधा लैन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे हजूर आ जाने के लिए, इसके बाप के लिए जे जैतून के दरख्त की केयर करता हुआ बरकत इसकी ज़िंदगी में, और ऐसे ही बेटी की ज़िंदगी में, हन्ना की ज़िंदगी में बाप। और इस छोटी बेटी के लिए तेरे हजूर खादमा देखते हैं। और जैतून जो घुटनों को ठीक कर देता है, जो दिल को ठीक कर देता है, सेहत को बढ़ाता है, और ये जैतून के पौधों की मानद है। इसकी ज़िंदगी में बरकत नज़र आए। हम सब खदाम जो तेरे हजूर मिलकर इस बेटी, छोटी नन्ही बेटी के लिए बरकत चाह रहे हैं, ये खादमा टॉप की बने, इसके वसीले से रूहें बचे, ये मकाशफों की कसरत इसके पास हो, दुरुस्त तालीम हो, कामयाब जैसे गोश्त और खून में बड़े तुझ में बड़े। बाप इसके बदन से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, ये कभी बीमार ना हो, ये जहन की कमजोर ना हो। इसके लिए कफारा दिया गया, इस पर यस्सु का लहू है।
اس کے نام میں اثر ہو، اس کی پرسنالٹی میں اثر ہو، اس کا رعب ہو، اس کا دبدبا ہو۔ باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ شکریہ جی، تھوڑا جا برداشت کریں گا۔